Open University. What they say, this virus will infect 68% of the country population, and after that the virus will automatically rest in peace. Could you please get me these two clarifications? Thank you. Back to you. Right. Okay. Well, first of all, coming to you, Dr. Padma, he's asking when will the testing start in Bangalore. He wants to present himself as for human testing, and he says that, do I have to be COVID positive to be eligible? So the eligibility is healthy human volunteer who's not infected. So you don't have to get infected to get into the trial. That's number one. The phase 1 is in healthy human volunteers who are in a certain age group of 18 to 55 and have no diabetes or hypertension or other comorbid conditions. So they're healthy human volunteers, they're not infected. So that's number one. And you know, the government is deciding what all are the centers. So I guess you will get to know once Bangalore is also a center for you. Number two, what you heard from the United States is something what is called as a herd immunity. So they've been talking about this herd immunity for a while now. So something like 60 to 70% of the population being affected or infected, and then you would develop that kind of an immune process where there is not much of population left don't have an innate immunity developed. That is a concept, and that's what people are hoping for. But this is a new virus. People are still on a learning curve about this virus. This virus has turned out to be more than a respiratory virus. Right. Hence, we Right, hope Dr. it Padma. is. We don't know yet. We have a caller. डॉक्टर कई सारे रुकमा आज फेसबुक पे भी कई सारे सवाल आ रहे हैं, उसके अलावा फ़ोन से भी कई सारे सवाल आ रहे हैं। विशाल हमारे साथ हैं, बिहार से जुड़े हुए हैं। विशाल पूछिए। हाँ सर, हम जानना चाहते हैं कि हम डायबिटिक पेशेंट हैं। बोलिए बोलिए। हम डायबिटिक पेशेंट हैं और इधर एक हफ्ता से गले में खराश बना रहता है बराबर। ओके डॉक्टर अग्रवाल, आई थिंक टेस्टिंग गले में खराश खाली है तब भी टेस्टिंग करा लें। डायबिटिक पेशेंट है। उम्र क्या है इनकी? व्हाट्स हिज एज? उम्र क्या है आपकी? विशाल सुन रहे हैं? हाँ, 42 ईयर्स। 42 ईयर्स। डायबिटीज कंट्रोल में है या अनकंट्रोल्ड है? डायबिटीज है कंट्रोल में है। कंट्रोल में है। कंट्रोल में है। खाली खराश या कोई और सिम्टम भी है आपको? नहीं, गला में खराश बराबर बना रहा है, कभी एक आध बार खांसी भी होता है, बस यही प्रॉब्लम है। कोई बुखार तो नहीं है? नहीं, बुखार नहीं है, कोई अदरवाइज कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, कोई सिम्टम नहीं है और खराश जा ही नहीं रहा है बिल्कुल। हाँ, दिन भर में लगता है कि अपने आप ठीक भी हो गया और फिर लगता है कि कुछ गला भारी भारी टाइप का लगता है। आई थिंक इनको अच्छा, कोई आसपास केसेस हैं हमारे घर के आसपास, घर के अंदर कोई मरीज हो आसपास कम्युनिटी में? कोई नहीं, तो हमारे मोहल्ले में निकला है, हमारे मोहल्ले में निकला है, 10-12 निकला है कोविड-19। 10-12 निकला है। आई थिंक आपको टेस्टिंग करा लेनी चाहिए। आपको टेस्टिंग करा। आप टेस्टिंग करा लीजिए विशाल जी। आप टेस्टिंग करवा लीजिए। आपके नज़दीक में जो भी टेस्टिंग फैसिलिटी हो सरकार के द्वारा बनाई गई या निजी कोई लैब हो जहाँ पे टेस्टिंग फैसिलिटी ICMR के द्वारा वहाँ पर अगर ऑथोराइज्ड किया गया हो तो आप जाके टेस्टिंग करवा लीजिए। काफ़ी ज़रूरी है आपके लिए टेस्टिंग करवाना। Right, coming back to you again, Dr. Agarwal, as we were discussing about clinical trials and human trials and so on, well, very interesting are asymptomatic cases. How fortunate would you say they are, and how unfortunate are those who come in contact with them? I think it's a very different behavior of this virus with individuals. Like the people are asymptomatic, they are spreading around, but the people who get it may not be that lucky and they may get sick. Yes. It depends upon how many are the comorbids whom they are infecting, right? Yes. So first of all, asymptomatic individuals are very dangerous in the community because they will come home also at home. They have got parents, they have got elderly people around. So they are fine because they are asymptomatic because their immunity is resisting it and they will come out of it without problems, right? Yes. But detecting them is very important because whom they are infecting and how comorbid are these patients who are getting infected is a problem. So that's why the testing is number of tests are very important to do. You see in other countries the number of testings are very high. Yes. And that's how they are really taking up it so well, and our numbers are still much less. ठीक है। डॉक्टर, हमारे पास कई सारे सवाल फेसबुक के जरिए आ रहे हैं। हम
आपसे चाहेंगे कि संक्षेप में इनका जवाब दे दीजिएगा। अर्पण दिव्या लिंबू हैं, ये पूछ रहे हैं कि कोविड-19 है तो ठंड भी लगता है और वोमिटिंग भी होती है क्या डॉक्टर पद्मा? यस, ठंड भी हो सकता है, चिल्स इज अ नोन फैक्टर एंड वॉमिटिंग्स भी हो सकता है, एब्डोमिनल पेन हो सकता है, डायरिया हो सकता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कंप्लेंट्स आर नोन। तो ये दोनों भी कोविड की सिम्टोमेटोलॉजी में जुड़े हुए हैं। ठीक है। डॉक्टर अग्रवाल निधि पुरी हैं, ये पूछ रही हैं कि डॉक्टर पद्मा निधि पुरी हैं, ये पूछ रही हैं कि मैं 60 साल की हूँ और सीजनल ब्रोंकल एलर्जी मुझको है। माई PO2 लेवल रिमेन्स बिटवीन 92 to 94%, अदरवाइज नो सिम्टम। क्या कहेंगे? तो ये जो क्रॉनिक इश्यू है बहुत लोगों के पास, ये जो एलर्जिक राइनाइटिस, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज, ये बहुत सारे होते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर उसके अलावा आपको कोई नया प्रॉब्लम हो गया तो जरूर टेस्ट करवा लेना, क्योंकि ऐसे लोगों में अगर कोविड आ गया तो वो सीवियर हो सकता है। नहीं, ये भी लिख रही है, सावधान रहें। डॉक्टर पद्मा, इन्होंने ये भी लिखा है कि सफरिंग फ्रॉम कंट्रोल्ड हाइपरटेंशन एंड ISD। यस यस, प्रिकॉशन ले रहे हैं सब, प्रिकॉशंस ले रहे हैं तो प्रिकॉशंस लेते रहिएगा, बिल्कुल सही है, क्योंकि कोमॉर्बिडिटी बहुत है इनमें। अगर इन्फेक्शन हुआ तो सीवियर हो सकता है, इसीलिए दे शुड बी केयरफुल, दैट्स इट। विनोद दुबे हैं, विनोद दुबे पूछ रहे हैं कि कोविड-19 कितने दिनों के बाद लक्षण दिखाने लगता है? ये तो जो ये इंक्यूबेशन पीरियड वेरीज है ना, अबाउट 1 हफ्ते तो ऑलमोस्ट 14 days यू कैन, जनरली इट इज विद इन 5 days। तो ये जो अगर इन्फेक्शन हो गया तो नेक्स्ट 5 days में आ सकता है, तो बट मैक्सिमम 14 दिन, तो इसीलिए 14 दिन की क्वारंटीन में करते हैं। अंकित कुमार हैं, ये पूछ रहे हैं कि व्हाट डाइट शुड वी टेक व्हिच मेक अस मोर इम्यूनाइज्ड? इम्यूनिटी बूस्टिंग पूछ रहे हैं ना, तो ये इम्यून बूस्टिंग की कह रहे हैं। हाई प्रोटीन डाइट, थोड़ा सा नट्स ले लीजिएगा, जो प्रोटीन की जो पनीर है, या व्हाटएवर वे यू कैन टेक। एंड ये जो कहते हैं ना कड़ा, तो मैं भी मानती हूँ, तो बिकॉज सम अमाउंट ऑफ जिंजर एंड हल्दी एंड क्लव्स एंड सिनेमन, दिस आर गुड, आप ये ले लेना। ये जो नॉर्मल बी कॉम्प्लेक्स एंड विटामिन डी आप ले लीजिएगा तो नॉर्मल होता है, ये नहीं कि सारा जो मनी जाके डोंट गो बाय विटामिन्स। नॉर्मल इंक्रीज प्रोटीन, गुड एक्सरसाइज एंड योगा एंड मेडिटेशन। Right. Well, so as Dr. Padma has said, Chandrasekhar, spices, ginger, high protein diet, nuts are very good at this point, very good option. Well, many traditional medicines, Ayurvedic medicines and Ayurvedic drinks have these ingredients in them, and they can be availed of very easily available in all shops. बिल्कुल, आयुर्वेदिक की अगर बात करें तो एक इसको लेकर के एक आयुष मंत्रालय की ओर से एक गाइडलाइन भी जारी की गई है, जिसमें ये बताया गया है कि किस तरह से आप अपने को इम्यूनाइज रख सकते हैं। उसमें बताया गया है कि आप हल्दी मिला हुआ दूध पिएं और इसी तरह तुलसी के पत्तों का सेवन करें, हल्दी मिला हुआ दूध पिएं, अपने को इम्यूनाइज रखें, साफ़ सफाई रखें। तो गाइडलाइन आयुष मंत्रालय की वेबसाइट पे अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको ये गाइडलाइन मिल जाएगी, आप वहाँ पे देख सकते हैं। और लगातार हमारे पास सवाल आ रहे हैं, डॉक्टर पद्मा हमारे साथ अभी भी जुड़ी हुई हैं। पद्मा, इन सब के सवालों को हम एक के बाद एक लेते हैं। डॉक्टर पद्मा, आरिफ अब्बास हैं, ये कहते हैं कि हाउ मच पॉसिबिलिटी इज फॉर रिकवर्ड पर्सन्स टू गेट इन्फेक्टेड अगेन? ओके, सो ये इम्पोर्टेंट सवाल है। कई लोग ने ये कहा कि एक बार नेगेटिव आ गया, उसके बाद टेस्ट पॉजिटिव आ गए, पर ये नहीं है कि अगर पॉजिटिव आए कि वो वायरस जो है इन्फेक्टिव है, ये नहीं है। कई बार वो डेड वायरस भी समटाइम्स हमारे टेस्ट में पॉजिटिव आती है। अभी तक दुनिया में बहुत ही कम परसेंटेज में ऐसा आया कि वो दोबारा इन्फेक्ट हुआ। टेस्ट पॉजिटिव आ सकती है, पर ये नहीं कि वो इन्फेक्टिव है। Right, Dr. CM Singh also joins us now, Medical Superintendent AIIMS Patna. Very warm welcome to you, sir. Thank you so much for joining in. We are talking about the latest in the COVID-19 saga. Well, it's about human trials right now that we are discussing. Also about the steps that can be taken as the lockdown continues to open, as life continues to limp back to normalcy. Dr. Singh, your comments. Actually, vaccine trial has been started. First phase has been started, and if the results are good, then it will be beneficial to everyone. And what was your second question?
Right, talking about the precautions that we need to take and also about the immunity boosting, which seems to be very important right now. Okay, precautions is distancing and wearing of mask and sanitizing the hands and surfaces, which are frequently used surfaces, you can say. So Dr. these Singh? are precautions which, yes. जी जी डॉक्टर We सिंह, are एक also सवाल taking- फेसबुक के जरिए हमारे पास आया है और ये काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल इस वक्त हो सकता है। सवाल ये है कि मास्क को लॉन्ग टाइम तक यूज़ करने से क्या कोई साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं? क्या सर दर्द या कुछ और इस तरह के कोई इफ़ेक्ट हो सकते हैं? यूजुअली ऐसा होता नहीं है, अभी तो बहुत सारे लोग यूज कर रहे हैं। ये शुरू में जिनको सांस की परेशानी है उनको शुरू में थोड़ा दिक्कत हो सकती है, बट धीमे धीमे जब हम यूज करते रहते हैं तो उसके यूज टू हो जाते हैं, तो इससे ऐसा कोई साइड इफेक्ट नहीं है मास्क पहनने का। डॉक्टर पद्मा, क्योंकि ये सवाल कई सारे लोग पूछते हैं इस वक्त। यस, ये अच्छी सवाल है। एक्चुअली पहनने में थोड़ा सा मुश्किल समटाइम्स हो जाता है ऐसे मौसम में, बहुत ह्यूमिड है, स्वेटिंग है, अंदर भी स्वेट कर रहे हैं, तो तब प्रॉब्लम हो सकता है। पर ऐसे कभी भी अगर बाहर हो तो आप मास्क पहने रखें। ऐसे क्लोज्ड रूम में बहुत लोग हैं, मास्क पहने रखिएगा। पर अगर आप अकेले हो रूम में तो आप मास्क ओपन करके रख सकते हैं। घर पे हो और अपने लोग हैं, कोई भी कोविड नहीं है, सब सैनिटाइज्ड है, मास्क नीचे रख के आप रख सकते हो। तो 24 आवर्स पहनने में प्रॉब्लम होगा, पर ये सावधानी है कि जब भी आप बाहर हो और ऐसे जगह पे हो जहाँ बहुत लोग हैं, क्योंकि कांग्रेगेशन में ज्यादा इन्फेक्शन होते, तब मास्क पहने रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, डॉक्टर अग्रवाल हमारे साथ जुड़े हुए। डॉक्टर अग्रवाल अभी कुछ देर में जुड़ेंगे। डॉक्टर सिंह, एक सवाल आया हुआ है, ये कहते हैं कि कौन सा मास्क अच्छा है, N95 या 3 प्लाई सर्जिकल या होममेड क्लॉथ मास्क? हालांकि इसको लेकर के काफ़ी जवाब दिए जा चुके हैं जो भी मंच हैं उनसे। जी बताइए। वैसे अगर अच्छे की हम बात करें तो N95 मास्क ऑब्वियसली सबसे अच्छा यही है, N95 मास्क। लेकिन यूज डिपेंड करता है कि नेचर ऑफ एक्सपोजर और नेचर ऑफ रिस्क कितना है इंडिविजुअल का। तो N95 मास्क अच्छा है, लेकिन उसकी सबको ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल यूज़ में अगर हम 3 प्लाई मास्क यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ सफिशिएंट, या इवन कपड़े का भी मास्क यूज़ कर रहे हैं तो सफिशिएंट है। लेकिन जो लोग हाई रिस्क वर्क कर रहे हैं, जो कोविड पेशेंट के नज़दीक में आने की संभावना जिनकी ज़्यादा है, वो लोग N95 मास्क यूज़ करें तो अच्छा है। तो बेसिकली N95 मास्क हाई रिस्क में जो लोग हैं उनके लिए है। बाकी नॉर्मल लोग सर्जिकल मास्क या कपड़े का मास्क यूज़ कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं। Right, Dr. Singh, also we were discussing about whether once a patient recovers from COVID-19, is that patient immune and will that patient never have to suffer COVID-19 again? Actually, once the patient has recovered, he should not develop the infection again. But sometimes people used to come positive due to remaining dead virus in the circulation. Actually, this is some reports has been there. A person has been reinfected, but there is no conclusive evidence that reinfection is going on. Okay, Dr. Padma, you were also discussing about this in detail and telling us about how patients have complained about how a person, after having been declared negative after recovery period, they come again and say that they are positive. So one reason we've got from Dr. Singh that it's because of some of the virus that still remains in the system. It's the dead viral particles. जो टेस्ट जो हम करते हैं ना, the test actually is an RT-PCR. It actually picks up the DNA of that virus. Okay, the remnants of the virus. It's not that the virus is alive. So a dead viral particles can also come as positive in the test. That's one thing. The second thing is, Rukma, we don't know much about the virus yet. In fact, there was a recent report by Dr. Fauci, from the US, from the CDC. So what he said is, just like हमारा जो herpes virus है, जो हमने एक बार टेस्ट हो गया है, पर वो बरसों हमारे अंदर रहती है, कोई प्रॉब्लम हो तो थोड़ा सा you get a cold sore, nothing else. So we don't know. If we live with this virus for several years, we will know how the virus will behave even in survivors.
there's a whole lot of research on COVID survivors currently, and we're learning more about it. So this is still a learning curve, and I want to emphasize that. So we don't have all the answers yet. Yes. डॉक्टर अग्रवाल, रचिता शर्मा पूछ रही हैं कि उनकी जो सोसाइटी है उसमें 3 कोविड-19 पेशेंट हैं और आप उन्हें बताएं कि क्या प्रिकॉशन वो लें। पहली चीज, जो तीनों क्या एडमिटेड हैं या सोसाइटी में रह रहे हैं अभी? आर दे होम क्वारंटाइन और दे आर हॉस्पिटलाइज्ड? ये कहते हैं कि सोसाइटी में रह रहे हैं। सोसाइटी में रह रहे हैं, तो ये इसका मतलब कि बहुत माइल्ड सिम्टम होंगे या सिम्टम नहीं होंगे, उनको पॉजिटिव है, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। ओनली थिंग इज दैट कि जो रेगुलर प्रिकॉशन जो सभी लोग बार बार बता रहे हैं आपको कि जब भी घर से बाहर निकले तो मास्क पहन के निकलेंगे हम लोग, और डिस्टेंसिंग का, सोशल डिस्टेंसिंग होनी चाहिए, और सैनिटाइज करें हैंड्स को। दैट्स व्हाट दे कैन डू, बट नथिंग टू बी स्केयर्ड अबाउट दैट। वहाँ है तो हमें भी हो जाएगा। बिल्कुल, रुकमा। Right. Well, Dr. Singh, when we talk about asymptomatic patients, is there any treatment for them? Actually, asymptomatic patient, in fact, don't require any treatment, since we know there is no definitive treatments of COVID till now. So asymptomatic patient actually need not any treatment. There is no need to prescribe any treatment to asymptomatic patient. Right. No treatment for asymptomatic patients, and we are taking calls from callers across the country. Well, coming to you, Dr. Padma, when we talk about active cases and number of inactive cases, what do we basically mean? The active cases are those which are still COVID positive. Okay? So the moment when you repeat a test and the test is negative, and uska bhi rules thoda badal gaya, so we don't keep repeating tests twice. So once they are negative, then they're inactive, and then they're discharged home and home quarantine for a week. So those are the inactive. Active, inactive is COVID positive test becoming negative. That is the differentiation. डॉक्टर सिंह, एक सवाल है, लाजपत नगर दिल्ली से हैं सतीश अरोड़ा। सतीश जी, अपना सवाल पूछिए आप। सर, ऐसा है कि मेरे घर के साथ में ना मकान टूट रहा था, बिल्कुल साथ वाला। उसमें डस्ट काफी आई, उसमें जो है ना मेरा गला भी खराब हो गया और टेम्परेचर भी हुआ। टेम्परेचर 102 का हुआ था। मैंने पैरासीटामोल, डॉक्टर के कंसल्ट पे पैरासीटामोल और कैपिला की एजी गोली खाई थी जी। अब बुखार तो उतर गया है, बट उसके अंदर ना गला अभी खराब, जिसमें गरारे भी कर रहा हूँ जी। तो जैसा कोरोना टेस्ट कराने की जरूरत तो नहीं जी? इसमें कोरोना टेस्ट कराने की जरूरत तो नहीं। अब जैसा आप बता रहे हैं कि पता नहीं, आप पहले डस्ट से आपको एलर्जी पहले भी रही है? एलर्जी पहले थी। एलर्जी पहले से रही है? हाँ। तो एलर्जी पहले से रही है तो उम्मीद कम है, क्योंकि आप बता रहे हैं फीवर ठीक भी हो गया, थोड़ा सा गले में खराश है, लेकिन चूंकि अभी पेंडेमिक है कोरोना का, उसका भी सिम्टम ऐसे ही प्रेजेंट करता है कि गला खराब हो और फीवर हो। तो बेहतर है, अगर सिम्टम परसिस्ट कर रहा है तो आपको एक बार टेस्ट करा लेना चाहिए कोविड का। सतीश जी, आप टेस्ट करवा लीजिए। दिल्ली में काफ़ी सुविधाएं इस वक्त टेस्टिंग की गई हैं, आप जाके टेस्ट करवा लीजिए अपना। Meanwhile, in Delhi, well, Chandrasekhar, the plasma donation drive has also begun in AIIMS. I'd like to ask our experts what this basically means. What is plasma donation and how does it help? First of all, coming to you, Dr. Agarwal. Yeah. See, it's called as convalescent plasma. जो patient infect हो जाते हैं, उसके बाद recover हो जाते हैं, they develop immunity in the like plasma. These cells are there in the plasma. So right now drive is there because people are scared कि लोग देना नहीं चाहते प्लाज्मा। उनको लगता है कि इससे कुछ और बीमारी लग जाएगी, ऐसा कुछ नहीं। इफ दे हैव रिकवर्ड क्वाइट वेल तो प्लाज्मा देने में कोई नुकसान नहीं है, और प्लाज्मा काफ़ी लोगों को हेल्प कर रहा है। लाइक इफ द एंटीबॉडी टाइटर इज़ गुड, और ये प्लाज्मा देने से काफ़ी लोगों को हम लोग बचा पा रहे हैं। तो ये ड्राइव इसलिए चल रहा है कि लोग अभी भी स्केर्ड हैं, उनको कॉन्टैक्ट करते हैं तो वो प्लाज्मा देने के लिए तैयार नहीं है, डिस्पाइट बीइंग दे बिगिन नेगेटिव। सो मेरी रिक्वेस्ट सभी से है, जो लोग ठीक हो चुके हैं, इससे बिल्कुल कोविड नेगेटिव हैं, so they should come forward and support this system of plasma bank, because this is going to save a lot of serious patients who need plasma at times. Plasma is required in a very few percentage of patients who are sick and in the CCUs, and this has been now tested that if this is given early, then it is quite helpful in some patients.
Right. So I think ठीक है। I'll request from your media that they should come forward and give plasma. देने में कोई नुकसान नहीं है बिल्कुल। Right. ठीक है डॉक्टर CM सिंह, आपको जाना है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। और डॉक्टर अग्रवाल, लाजपत नगर से ही हमारे साथ एक कॉलर हैं, वो एक सवाल पूछना चाहते हैं। जी बताइए। पानी पी सकते हैं क्या या नहीं पीना चाहिए, या रूम टेम्परेचर का पानी पीना चाहिए? जी रघुवंश, अपना सवाल दोहराइएगा। हाँ, आजकल गर्मी इतनी हो रही है तो गर्म पानी पी सकते हैं क्या आजकल या नहीं? राइट। गर्मी इतनी हो रही है तो कैन वी डॉक्टर अग्रवाल, शुड वी ड्रिंक वार्म वाटर, हॉट वाटर? It's not required, like one can have room temperature और maybe ठंडा पानी पी सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। Like there's no issue on that. डॉक्टर पद्मा, एक सवाल है, हिमांशु द्विवेदी हैं, ये पूछते हैं कि 5 साल पहले इनको टीबी हो गई थी, अभी क्या इनको कोई स्पेशल प्रिकॉशन लेने चाहिए? प्रिकॉशंस जरूर लेना है, जो नॉर्मल प्रिकॉशंस भी एक स्पेशल प्रिकॉशन ही है आजकल कि आप अपने आप को रखिएगा कि बाहर मत जाइए, मास्क पहनिए, सैनिटाइज करिए, सेम प्रिकॉशंस। पर अगर आपको कुछ प्रॉब्लम लग रहा है तो तुरंत जांच करवा लीजिए, क्योंकि टीबी भी लंग्स को प्रॉब्लम क्रिएट करती है। थोड़ा स्कारिंग अगर है, कोविड अगर आ गया तो सीवियर हो सकता है, इसीलिए और सावधान रहिएगा। चरणजीव शर्मा हैं, डॉक्टर पद्मा ये पूछ रहे हैं कि क्या आइसक्रीम खा सकते हैं, गर्मी के दिन है? बिल्कुल खा लीजिएगा, ऐसा नहीं आइसक्रीम के जरिए से कोरोना नहीं करती है। आइसक्रीम में कुछ और बैक्टीरिया वगैरह की ये कोरोना से कुछ नहीं घटना ना, बिल्कुल खा लीजिए। जम्मू से हैं गिरधारी लाल जी बताइए। जी, कॉलर फ्रॉम जम्मू, मिस्टर सरदारी लाल, प्लीज स्पीक। जी पूछिए, सवाल पूछिए अपना। सर जो एक बार कोरोना आता है तो उसको दोबारा क्या आ जाता है? जी पद्मा जी। नहीं, तो ये मत सोचिएगा कि एक बार आ गया तो दोबारा आ जाएगा। अगर आ गया तो सावधान रहिए, प्रॉब्लम हो तो आपको हॉस्पिटल में रहेंगे। आपको एक बार उससे छुटकारा पाने के बाद थोड़े देर आपको लगेगा कि आप पूरी तरह ठीक होने में थोड़ा टाइम लगेगा, उस टाइम पर भी आपको सावधान रहनी है। दोबारा तो नहीं आना चाहिए, अभी तक तो उसकी कोई सबूत नहीं है कि दोबारा आएगा। डॉक्टर अग्रवाल, जवाहर पटेल हैं, ये पूछते हैं कि क्या मुझे आइवरमेक्टिन 12 mg लेना चाहिए, इसका कोई नुकसान तो नहीं है, क्या ये मदद करेगा प्रोफिलैक्सिस फॉर कोविड? अभी तो प्रोफिलैक्सिस के लिए कोई प्रूफ नहीं है कि किसी भी दवा से कोई प्रोफिलैक्सिस हो रहा है। इवन जो पूर्व मेडिकेशन थी, शुरुआत में शुरू किया था हम लोगों ने कि हम इसमें हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन लें, एजिथ्रोमाइसिन लें, कोई हेल्प नहीं कर रहा बिल्कुल। तो प्रोफिलैक्सिस कुछ है नहीं अभी इसका, अभी तो ट्रीटमेंट ही कुछ नहीं है। तो प्रोफिलैक्सिस की बात करना मेरे ख्याल से कोई इसका कोई प्रूफ नहीं है। लेना चाहे ले लें, लेकिन कोई प्रूफ नहीं है कि इसको लेने में फ़र्क पड़ता है। ठीक है। लतीफ़ चौधरी है जम्मू से, वो पूछ रहे हैं कि यहाँ पर मौसम काफ़ी अप डाउन होता है, क्या कोल्ड लाइक सिम्टम्स नीड कोविड टेस्टिंग? तो आई थिंक sorry Dr. Agarwal. No, ma'am, you can carry on. You see, nobody can answer this question. Actually, no, I was just thinking कि ये जो टेस्टिंग का है ना, अभी जम्मू, I'm not too sure, but जब टेस्टिंग रैंप अप हो गया और एक पैंडेमिक है, तो अगर कोई आपको लगता है, कंप्लेंट लगता है, कोई सस्पिशन लगता है, तो प्लीज गो अहेड एंड गेट इट टेस्टेड। जैसे दिल्ली में टेस्टिंग की काफी सुविधा हो गया है, यू शुड गेट इट टेस्टेड। आई थिंक पहले प्रॉब्लम था कि टेस्टिंग ही नहीं हो रहा था, बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, उसमें वो पिक एंड चूज हो रही थी। अभी तो इन अ पैंडेमिक अगर टेस्ट अवेलेबल है, प्लीज गो अहेड एंड टेस्टिंग की कई डिफरेंट वेराइटीज भी आ गया, सब कुछ RT-PCR नहीं है। अभी एंटीजन टेस्टिंग भी आ गया, एक CBNAT TrueNAT टेस्टिंग आ गया है, एक है जो 15 मिनट में आपको रिजल्ट दे सकती है। तो when tests have ramped up, I think you should go ahead and get it tested. ठीक है डॉक्टर अग्रवाल, आप इसका भी जवाब दीजिएगा। साथ में एक सवाल और है, प्रशांत कावठेकर हैं, ये काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल पूछ रहे हैं। ये पूछ रहे हैं कि हाउ टू टेक ऑफ ग्रोसरी बाइंग फ्रॉम शॉप, हाउ मेनी डेज वायरस स्टे ऑन इट एंड वैनिश्ड ऑटोमेटिकली? ऑटोमेटिकली वैनिश का तो नहीं मालूम, लेकिन ग्रोसरी जो लेते हैं, पहली चीज़ तो लाइक आप ला के उसको थोड़ा देर कहते हैं कि
अगर हम उसको 24 घंटे ना छुएं, उसको रखे रहने दें ऐसे ही, तो उसको यूज़ कर सकते हैं। दूसरा चीज़ क्या करना चाहिए, सैनिटाइज करने का रोल कितना है किसी को नहीं मालूम है अभी तक, राइट। अभी कहते तो हैं कि आप लाके ग्रोसरी को रख दीजिए बाहर, उसको यूज़ मत करिए, कम से कम अगर आप ओवरनाइट छोड़ दें तो दैट इज़ मच बेटर, ठीक है। सैनिटाइज करने में कभी कभी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं कि अगर आपने सोप वाटर में डाल दिया उसको या अल्कोहलिक से उससे क्लीन किया तो उससे चीज़ें ख़राब भी हो जाती हैं और फ़ायदा भी नहीं मालूम कि कितना उसका फ़ायदा है। ओनली थिंग इज़ दैट कि जब उसको आप हैंडल कर रहे हैं तो ग्लव्स पहन के हैंडल करें, और चीज़ें बॉयल होने के बाद वैसे भी कोई दिक्कत नहीं है किसी भी चीज़ में। तो ये सवाल बड़ा ही, कहने का मतलब मुश्किल आंसर करना है कि एक तो जहाँ से ले रहे हैं शॉप अच्छी होनी चाहिए, जो हैंडल कर रहा है उसको कोरोना नहीं होना चाहिए, राइट। बाकी लाने के बाद आप थोड़ी देर उसको ओवरनाइट अगर छोड़ दें और नेक्स्ट डे उसको इस्तेमाल करते हैं तो दे शुड नॉट बी मच प्रॉब्लम्स। राइट, फ्रॉम वृंदावन वी हैव अ कॉलर नाउ, उषा रानी। उषा रानी जी, चलाना यहीं से फोन पे सुनाई दे रहा है जी। उषा रानी जी बताइए, क्या सवाल पूछना है आपको? मेरा सवाल पद्मा जी से है। मेरे हस्बैंड को GVS हुआ था 3 साल पहले, GVS सिंड्रोम। तब IVG ट्रीटमेंट दिया गया था। वो अभी भी आधा किलोमीटर से ज्यादा चल नहीं पाते और उनको थाइज में बहुत प्रॉब्लम रहती है। थाइज के मसल्स में दर्द रहता है हर वक्त। जरा पूछ दीजिए प्लीज जी। हाँ, तो ये जो तो GBS एक तरह के गिलियन बैरे सिंड्रोम एक न्यूरोपैथी है। तो वो IVIG उस टाइम प्लाज़ाफेरेसिस, IVIG ये सब ट्रीटमेंट होती ताकि वो उस तरह की इट्स अ वेरी सिवियर प्रॉब्लम वहाँ से बाहर निकले। पर निकलने के बाद भी वीकनेस और पैरालिसिस थोड़े बहुत तो रह जाते हैं कुछ लोगों में। तो इसलिए अगर चल रहे हैं तो फैटीग, और फैटीग के साथ थोड़ा पेन होगा। तो चलना, अगर चल सकते तो आप चलिएगा जितना आप चल सकते हैं। धीरे धीरे और इम्प्रूवमेंट भी हो सकता है, बट दिस इज अ नोन थिंग। ये नहीं कि ये कुछ अजीब सा है, ये क्यों हो रहा है, ये चिंता मत करिएगा। बस आप अच्छी खुराक दीजिएगा और एक्सरसाइज बनी रखिए। उषा जी, कुछ और पूछना चाहेंगे आप? कहते हैं कि मेरे को 3 साल हो गए, मैंने कई न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाया, मैं अच्छे से वॉक नहीं कर पा रहा हूँ। हाँ, तो जैसे है ना, जैसे किसी को एक्सीडेंट हो गया, किसी को लकवा हो जाती है, इम्प्रूवमेंट होता है, 100% वापस नहीं आती, थोड़ा बहुत तो रह जाता है। ऐसे ही कुछ लोगों में GBS के बाद भी कुछ रह जाता है। तो ये नहीं सोचना कि ये 100% जैसे पहले मैं दौड़ सकता था ऐसे हो जाओ, पर इम्प्रूवमेंट जरूर आ जाती है। समटाइम्स थोड़ा रेसिडुअल प्रॉब्लम रह जाता है, प्लीज उसके पीछे मत भागेगा, दैट वोंट हेल्प। एक्सरसाइज बनी रखिए, फिजिकली एक्टिव रहिए, अच्छे खुराक लीजिएगा। ठीक है। डॉक्टर अग्रवाल, कैलाश कुमार खरे हैं, ये पूछते हैं कि आर्थराइटिस पेशेंट के लिए क्या प्रिकॉशन होना चाहिए? प्रिकॉशन आर्थराइटिस वाले के लिए भी सेम है कि अक्सर ये लोग मेडिसिन पे होते हैं जो कि यूजुअली जैसे ये लोग कुछ लोग होते हैं ना इम्यून मॉडिफायर्स पे होते हैं, जैसे हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन वगैरह चल रही होती है इनको। तो इसके अंदर अगर होता है तो जो दवाइयाँ हैं, जैसे पहले जो दवाइयाँ शुरुआत में आई थी जिसमें कि लोपेनाविर थी, रिटनाविर थी, ये दवाइयाँ कुछ हमारे पास हमारा जो क्यूट इंटरवल को बढ़ा रही थी। लेकिन आजकल जो दवाइयाँ हैं जैसे रेमडेसिविर है, डेक्सामेथासोन है, इसका कोई क्यूट इंटरवल को फर्क नहीं है। तो आई थिंक रेगुलर ट्रीटमेंट इज रिक्वायर्ड इन केस दे गेट द कोविड, बट दे आर सर्टेनली एट अ हायर रिस्क देन द नॉर्मल पॉपुलेशन की कोविड होने के चांसेस। मतलब कोविड अगर हो जाए तो आप चांसेस तो सेम है, बट दे कैन बिकम रियली सीवियर, दे कैन कम इन सीवियर फॉर्म। ठीक है। डॉक्टर पद्मा, दीपाली दहिया हैं, ये पूछती हैं कि क्या काढ़ा पिया जा सकता है गर्मी के दिनों में, क्योंकि इसमें हल्दी होती है, जिंजर, गार्लिक, ये सब होता है। बिल्कुल पीजिएगा, मैं भी पीती हूँ रोज, डोंट वरी। ठीक है। नव्या ओम हैं, ये लिखती हैं कि क्या AC का उपयोग करना चाहिए घरों में आजकल? करिएगा, क्योंकि AC का बहुत चक्कर है। तो इट इज सेड अबाउट द फिल्टर्स एंड उसकी फ्लो एंड वो जो एयर सर्कुलेट कर देती है, कोई इन्फेक्टेड हो गया तो वो एरोसॉल घूमता रहेगा, तो स्पेशली इन लार्ज एरियाज। पर घर पे जब सब लोग ठीक है, वहाँ पे अगर AC इस्तेमाल करने में उतनी प्रॉब्लम नहीं है। पर आजकल थोड़ा सा मौसम बदल भी रहा है, आई थिंक वेरी सून वी मे नॉट रिक्वायर AC सो मच, बट बहुत गर्मी है तो AC घर पे आप यूज कर सकते हैं। ठीक है। डॉक्टर अग्रवाल, रितेश हैं दिल्ली से। जी रितेश, पूछिए। डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अगर कोई पेशेंट कोरोना से रिकवर होकर के घर वापसी आ गया है तो उसको कितना चांस है दोबारा फिर उसको संक्रमित होने का? भाई अभी तक तो डेटा कहता है कि ज़्यादा चांसेस नहीं है बिल्कुल भी, राइट।
बाकी अभी आप सुन रहे हैं, पहले भी कुछ क्वेश्चंस आए थे ऐसे जिसमें कि लगता तो नहीं कि दोबारा से होगा, बट ये है कि घर पे आने के बाद भी करीब 7 रोज तक आराम करना चाहिए, थोड़ा सा रिकवर होने में समय लगता है, तो उसके बाद चांसेस नहीं होते हैं। बट प्रिकॉशन तो लेने ही पड़ेंगे कि सपोजिंग इन द लॉन्ग रन ये वायरस स्ट्रेन चेंज कर दे या कुछ और चीज़ें होने लगे, बट अभी तक का डेटा ये कहता है कि एक बार होने के बाद दोबारा होने के चांसेस नहीं है। ठीक है डॉक्टर पद्मा, एक आपके नाम से ही सवाल पूछा गया है, रेशमा खन्ना हैं, ये पूछती हैं कि डॉक्टर पद्मा, डू वी नीड टू कीप एन ऑक्सीमीटर एट होम फॉर एल्डरली मेंबर्स? You know what? Very great question. Actually, at least healthcare workers में ये कई लोगों के पास ये ऑक्सीमीटर दिया जा रहा है जो एसिम्प्टोमेटिक, जो कॉन्टैक्ट्स है, जो बुजुर्ग और कोमॉर्बिड कंडीशंस में लोग कहते हैं एसिम्प्टोमेटिक, अगर और कॉन्टैक्ट्स, अगर किसी को हुआ और उसकी कॉन्टैक्ट में ये है कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग, उनमें ये दिया जाता है। और भी लोग जो बहुत माइल्ड सिम्टम्स में है उनको भी ये दिया जा रहा है। तो इनफैक्ट कई लोग ये खरीद भी रहे हैं, तो उसका भी थोड़ा सा समटाइम दे कुड बी प्रॉब्लम्स, बट अगर एल्डरली है, कोमॉर्बिड है, कॉन्टैक्ट में आ गया है या एसिम्प्टोमेटिक माइल्ड पर कोमॉर्बिड कंडीशन है, तो ऑक्सीमीटर लेके यू कैन पल्स ऑक्सीमेट्री से आपकी सैचुरेशन टेस्ट करना, आई थिंक दैट इज हेल्पफुल, आप कर सकते हो। बिल्कुल डॉक्टर, कई सारे सवाल आज हमने लिए हैं और काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल आज हमने लिए हैं, और अब कार्यक्रम के अंत में हम काफ़ी एक महत्वपूर्ण विषय है जिस पे आपसे बात करना चाहेंगे, वो विषय है वैक्सीन डेवलपमेंट का। और अगर पूरी दुनिया की हम स्थिति देखें तो भारत काफ़ी अच्छी स्थिति में है, हमारे यहाँ मौतें भी कम हुई हैं, हमारे यहाँ लोग बहुत जल्दी इससे निजात पा रहे हैं, काफ़ी लोगों का इलाज हो चुका है, टेस्टिंग भी यहाँ पर बढ़ी हुई है। तो ये एक जो सकारात्मक संदेश मेडिकल फैटर्निटी की ओर से आया हुआ है कि वैक्सीन डेवलप हो रही है, एनिमल पे उसका ट्रायल हो गया है, ह्यूमन ट्रायल चल रहा है, इसको आप किस तरह से देखती हैं, खासकर अगर हम भारत की जो मेडिकल फैटर्निटी है उसकी कामयाबी की बात करें तो? बिल्कुल सही है, वेरी पॉजिटिव, वेरी प्रॉमिसिंग, आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक, आई एम वेरी वेरी प्राउड ऑफ व्हाट इज बीइंग डन। थिंक जितने हमारा पॉपुलेशन है इंडिया में, तो उस तरह देखे तो आई थिंक अ लॉट ऑफ कंटेनमेंट हैज बीन डन। दिल्ली में तो थोड़ा बहुत तो कमती ही हम देख रहे हैं, एंड द टेस्टिंग हैज रैम्प्ड अप। आईसीएमआर हैज नाउ क्लेम्ड 3.5 lakh tests a day. That is not a joke. So for an India and this kind of infrastructure, ours is still as a developing world with all the constraints, we've been able to do this. Very, very promising. In fact, I would congratulate all who've been involved in this. It is promising. Right, Dr. Agarwal, your comments as we nearly conclude the show, your comments on and your views on the progress that India has made, in fact worldwide, the progress that is being made on the testing of the vaccine. This is a very, very promising thing. Like other countries, we are really much ahead as far as the vaccine development is concerned. And I tell you, in the morning, I got 2 calls from the healthy donors. They wanted to just wanted the vaccine to be tested on them. They're totally asymptomatic. They're in the age group of 40 to around 50. They've got no problems, and they are coming forward to just serve as volunteers for vaccine testing. This is very, very promising. Like Right. if I get 2 calls, others also must be getting calls. Right. And if we get healthy volunteers and we can get the quickly testing done, that I think we can be having a very, very good, I think very near future we can get a vaccine, and that can be very, very important for the country with a huge population. As Dr. Padma is saying, the containment, we are very happy. You see our population is about 4 times than US, and the numbers still are rising, but still they are much less than what they can be if the things are not under control. So I totally agree with ma'am also, and I congratulate all the people from ICMR who have been controlling the disease all across the country, and the vaccine development, the scientists are really in forefront. And I think once these volunteers are coming forward to just give us the opportunity to test them out, I think it should be a promising future for the vaccine also.
Right, many thanks to both our guests on the show, Dr. Padma and Dr. Praveen as well, and for all your invaluable inputs, and many thanks to all our callers as well for joining us. Well, at this point, Chandrasekhar, the good news is, of course, as you have been reiterating, as our guests have been reiterating, is the progress that the vaccine is making, the development of a vaccine is making, and considering that the recovery rate in India is still very high. The numbers of infected are still low when we compare it to the huge population. लेकिन अंत में ये ज़रूर कहेंगे कि देश के कुछ ऐसे इलाके भी हैं जहां पर हर रोज़ जो कोरोना संक्रमण के मिलने का दर है वो थोड़ा बढ़ रहा है। ये इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि लोग वहां पर लापरवाही कर रहे हैं, इसलिए किसी तरह की आप लापरवाही ना करें। जो भी कोविड-19 को दूर रखने के लिए, संक्रमण को दूर रखने के लिए अब तो पूरे देश को या यूँ कहें कि पूरी दुनिया को मालूम है कि क्या कुछ इसके लिए करना चाहिए, वो आप करिए। मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग बरकरार रखिए, सैनिटाइजेशन पे ध्यान दीजिए।